नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जहाँ पर आप सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस हम करने जा रहे हैं। Guess why this person is worried? He has to study all these people, which is his population. Due to a large number, it is a problem for this man to study all these people. Don't worry, study few individuals. Statistics allow to study only a few individuals as compared to the full population. This is the case of what we call it as sampling. Statistical methods are divided into two groups: descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics consist of the tools and techniques designed to describe data, such as frequency table, graphs, and numerical measures like average and variation measures. On the other hand, inferential statistics consist of techniques that allow a decision maker to reach a conclusion about characteristics of a large dataset, about mean population, based upon a subset of those data. सैम्पल डेटा की बेस पे हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स के रेलेवेंट कोई कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं. That is comes under the topic of inferential statistics. Inference process किस तरह से है? We take a sample from the population. We calculate sample statistics from that sample. We use sample statistics to estimate and test about population parameters, and we conclude about population. Sampling क्या है? It is a procedure of selecting a representative sample from a given population. It should be a representative sample. अब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है? जिसमें पॉपुलेशन के हर तरह के मेंबर्स जो हैं वो आ रहे हैं. एक बिग पॉपुलेशन है हैविंग पॉपुलेशन साइज ऑफ कैपिटल N. We do a process of sampling on population and pick a few number from that large population. Sample size is denoted by small n. For example, these all individuals is our population, and these red individuals belongs to the sample, which is a subset of this population. Population किसको कहते हैं? It is a totality of the observations made on all the objects under investigation, possessing some common specific characteristic which are of particular interest to the researchers. Size of population is denoted by capital N. For example, population of all voters in Pakistan, population of all mobile users in Punjab, population of fish in a pond. Population may be of living things or non-living things, as well as of maybe of animals, human beings, birds, insects, trees, even farmlands. Parameter: numerical quantity describing a population. Population mean is denoted by mu, variance is denoted by sigma square, proportion is denoted by capital P. Parameters are usually denoted by Greek letters. ये Greek letters हैं mu, sigma square. Parameters की notations Greek letters से show की जाती हैं. Parameters are usually unknown. जाहिर है हमें अगर हमारे पास पूरी population का डाटा नहीं है तो हमारे पास parameters भी unknown होंगे. And parameters are fixed constant values. देखें एक पूरी population का अगर डाटा हो तो उसकी एक ही average value जो है वो possible है. तो पैरामीटर्स जो होते हैं वो फिक्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो ये वेरी नहीं करते. एक पॉपुलेशन की एक ही एवरेज पॉसिबल है. सैंपल: अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन which is selected to obtain information concerning the characteristics of the population. Number of observations in a sample, called the size of the sample, and is denoted by small n.
Numerical quantity calculated from the sample is known as statistic. It is used to give information about unknown values in the corresponding population. Parameter, for example, educated guess value about population parameter. That is educated guess value. मतलब एक होता है guess जिसकी कोई भी बेस नहीं होती. एक है ये हम guess कर रहे हैं किसकी बेस पे, sample calculations की बेस पे. Statistics are usually denoted by Latin letters. For example, X bar, variance denoted by a square and proportion denoted by p hat. Statistics are variables as it varies from sample to sample. देखिए सैंपल्स एक आप सैंपल लेते हैं उसकी एवरेज कुछ और होगी, आप कोई और सैंपल लेते हैं उसकी एवरेज कुछ और होगी सेम पॉपुलेशन से. तो सैंपल स्टैटिस्टिक्स आर वेरिएबल which may vary from sample to sample. पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक्स. पॉपुलेशन फुल पॉपुलेशन का डाटा है आपके पास तो आप पॉपुलेशन मीन कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए नोटेशन म्यू की और समेशन x डिवाइडेड बाय n. यहाँ डिवाइजर पॉपुलेशन साइज होगा और यहाँ ऑब्जर्वेशंस भी पूरी पॉपुलेशन की आप ऐड कर रहे होंगे. जबकि सैंपल मीन के लिए x बार नोटेशन यूज होती है. सैंपल मीन को हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं और इसके लिए हम ऑब्जर्वेशंस जितनी सैंपल में है जस्ट उनको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे. Purpose of sampling. Two basic purposes हैं sampling के. Obtain maximum information about the characteristics of the population with minimum cost, time and effort. Of course हमारा टाइम कोस्ट और हमारी एफर्ट्स जो हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाएंगी जब हमें एक स्मॉल नंबर को स्टडी करना है एज कम्पेयर टू फुल पॉपुलेशन और हम बड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अबाउट द सैंपल. Find the reliability of the estimates derived from the sample. अच्छा ये भी पॉसिबल है कि हमने जो सैंपल एस्टिमेट्स हम कैलकुलेट करें हम उसकी रिलायबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं सैंपल एस्टिमेट्स की. इसके लिए भी स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज अवेलेबल हैं. एडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग क्या आ जाते हैं, टाइम सेविंग है, रिड्यूस कॉस्ट है, ग्रेटर स्पीड है और ग्रेटर स्कोप है. इसमें ऑफ कोर्स फ्यू पीपल को स्टडी करना है, फ्यू ऑब्जेक्ट्स को तो हमें थोड़ा टाइम चाहिए होगा सैंपल में एज कम्पेयर टू फुल पॉपुलेशन. ज़्यादा लोगों को स्टडी करने पे हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा आएंगे एज कम्पेयर टू स्मॉल सैंपल. स्पीडी काम हो जाएगा सैंपल के केस में एज कम्पेयर टू लार्ज पॉपुलेशन. ग्रेटर स्कोप, more scope and flexibility regarding the types of information that can be obtained. अब सैंपल के लिए आप एक स्मॉल नंबर को जब आपने स्टडी करना है तो आप ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. ग्रेटर एक्यूरेसी, personnel of higher quality can be employed and given intensive training. More careful supervision of the field work and processing of results become feasible. आपके जो अब अगर आपने ज़्यादा बड़े नंबर को स्टडी करना है तो फिर आप स्पीडीली काम करेंगे और बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर्सन्स को हायर नहीं करेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू कि अगर आपको स्मॉल नंबर को स्टडी करना है तो आप जो पर्सन हायर करेंगे वो हायर क्वालिटी के होंगे, अच्छे ट्रेंड पर्सन्स होंगे. फिर अगर उन्हें ज़्यादा अमाउंट दे भी देते हैं तो आप वो एक अच्छा डाटा कलेक्ट कर सकेंगे. ये डाटा कलेक्शन जो है इंटरव्यू करना ये हर कोई पर्सन नहीं कर सकता. तो जो ट्रेंड पर्सन्स होते हैं वो बेटर इसमें वर्किंग कर सकते हैं. तो स्मॉल नंबर को स्टडी करने के लिए हम थोड़े से पर्सन्स को हायर करके उनको एक अच्छी अमाउंट पे कर देंगे ताकि हमारा डाटा जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट आए. डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ सम टेस्ट, अब सैम्पलिंग इन सम सिचुएशंस मस्ट हो जाती है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे सैम्पलिंग यूनिट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन है अगर उनको हम चेक कर लें, टेस्ट कर लें तो वो ख़त्म हो जाएंगे. For example, you want to test the lifetime of battery lifetime of for example fans, light bulbs. तो यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट को यूज़ कर लेंगे, चेक कर लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी. इस सिचुएशन में हमें मस्ट सैम्पलिंग ही करनी होगी. ओके, मेथड्स फॉर सिलेक्टिंग सैम्पल्स. अब आप सैम्पल किस तरह से ले सकते हैं पॉपुलेशन में से. सैम्पलिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विद रिप्लेसमेंट. Sampling without replacement पहले देखेंगे. Without replacement, it is
A sampling is said to be without replacement if selected unit is not replaced into the population before selection of next unit. In this case, unit is selected only one time in a possible sample. आप क्या करेंगे कि एक आप सैंपल में से यूनिट पिक करते हैं, आप उसको दोबारा रिटर्न नहीं करेंगे पॉपुलेशन में और उसको साइड पे कर देंगे बिफोर द ड्राइंग ऑफ सेकेंड यूनिट. For example, consider a population of 4 fish with lengths 18, 20, 22 and 24 inches. Select all possible samples of size 2 without replacement. अभी एक स्मॉल सी पॉपुलेशन आपको दी गई है जिसमें 4 फिश हैं विद नेम्स ABCD और आपको सैम्पलिंग करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट और सैंपल साइज सिर्फ 2 का है. ये इतनी स्मॉल साइज की ना तो पॉपुलेशन कभी होती है और ना ही इतने स्मॉल साइज का सैंपल ही होता है. हम सिर्फ ये ले रहे हैं ये चीज़ देखने के लिए कि हम एक पॉपुलेशन से कितने पॉसिबल सैंपल्स ड्रॉ कर सकते हैं और उनका प्रोसीजर क्या होगा. अब हमारे पास पॉपुलेशन साइज ओनली 4 का है और हमें जो सैंपल ड्रॉ करना है उसका साइज 2 है और सैम्पलिंग टेक्निक जो हमें यूज़ करनी है इट इज़ विदाउट रिप्लेसमेंट. आप कितने पॉसिबल सैंपल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं इसमें से, इस पॉपुलेशन में से. तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास है के पॉसिबल सैंपल्स को शो कर रहा है. के इक्वल टू NCN. C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन. अगर आप अपने कैलकुलेटर पे देखें तो आपको NCR की टैब मिलेगी. ये आप कॉम्बिनेशंस आपने बनाने हैं कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं. उसमें आप पहले कैलकुलेटर पे पॉपुलेशन साइज लिखेंगे लाइक 4 लिखें, फिर वो NCR की टैब प्रेस करें, फिर सैंपल साइज लिखें दैट इज 2 इक्वल करें तो ये आपके पास 6 का नंबर आएगा. आपके पॉसिबल सैंपल्स यहाँ पे 6 बन सकते हैं. किस तरह से? NCN से 4C2 से. अब वो सैंपल्स किस तरह से बनेंगे मैं सीक्वेंस में आपको लेना बता रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप क्या करें 4 पेपर स्लिप्स बनाएं. 4 पेपर स्लिप्स के ऊपर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एक 1 by 1 ABCD, उनको फोल्ड करके फेंके. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट आपकी जो फर्स्ट स्लिप पिक हुई है इट इज A. अब आपने A को तो यहाँ पे लिख लिया. अब A के साथ सेकेंड यूनिट कौन सा हो सकता है? अब A पॉपुलेशन में से निकल चुकी है. A के साथ B भी आ सकता है, A के साथ C भी आ सकता है और A के साथ D भी आ सकता है. ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर फर्स्ट मेंबर जो है वो A सिलेक्ट हो गया है तो सेकंड मेंबर B भी हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है. हमने वो तीनों पॉसिबिलिटीज यहाँ लिख लेनी है. अब A पॉपुलेशन में दोबारा नहीं जा गया, A साइड पे आ गया. अब A के साथ सारी पॉसिबिलिटीज हो गई. अब रिमेनिंग मेंबर्स हैं B, C और D. अब आप स्लिप पिक करते हैं, लेट्स से इट इज B. अब B के साथ बाकी दोनों मेंबर्स कौन से हो सकते हैं? इट मे बी C और D. तो B के साथ C और B के साथ D लिख लेंगे. फिर B को भी साइड पे रख देंगे स्लिप को. अब हमारे पास स्लिप लेट से C पिक होती है तो उसकी C के साथ एक ही ऑप्शन है कि आपके पास D आ सकता है. अगर अब आप यहाँ पर देखें तो आपके पास 6 सैंपल्स जो हैं वो पूरे ड्रॉ हो गए हैं. हमने यहाँ लिखने थे ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2. तो ये ऑल पॉसिबल सैंपल्स हैं विदाउट रिप्लेसमेंट. सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट. अब विद रिप्लेसमेंट क्या होती है? A sampling is said to be with replacement if selected unit is replaced into the population before drawing the next unit. मतलब आपने एक यूनिट पिक किया है पॉपुलेशन में से, उसके जो इंफॉर्मेशन है वो नोट करें. फॉर एग्जांपल इट इज A का नाम लिखें और उस स्लिप को दोबारा रिटर्न कर दें पॉपुलेशन में. अब क्या पॉसिबिलिटी है कि A दोबारा सिलेक्ट हो सकता है? यस इट इज. In this, a unit is selected more than one time in possible sample.
अब ये पॉसिबल है कि एक यूनिट एक से दोबारा भी उसी सैंपल में सिलेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वही 4 फिश की पॉपुलेशन कंसीडर कर रहे हैं हम। अब हमें साइज 2 के ही सैंपल्स ड्रॉ करने हैं लेकिन विद रिप्लेसमेंट करने हैं। तो आप कितने पॉसिबल सैंपल्स ड्रॉ हो सकते हैं उसका नंबर के से ही डिनोट किया जा सकता है, लेकिन इसका नंबर किसके इक्वल होगा? k इक्वल टू n की पावर n। पॉपुलेशन का साइज उसकी पावर सैंपल साइज। यहाँ पॉपुलेशन साइज 4 है और सैंपल साइज 2 है, तो 4 स्क्वायर इट इज 16। 16 पॉसिबल सैंपल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं विद रिप्लेसमेंट। अब आपके पास वही पेपर स्लिप्स 4 ही हैं। अब आप फर्स्ट स्लिप पिक करते हो, फॉर एग्जाम्पल इट इज ए। आप फर्स्ट स्लिप पिक करते हो, इट इज ए। अब आपने ए को दोबारा रिटर्न कर देना है पॉपुलेशन में। अब ए अगर फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट हुआ है तो ए के साथ सेकेंड मेंबर के सिलेक्ट होने के चांसेस क्या हैं? इट मे बी ए, इट मे बी बी, इट मे बी सी और इट मे बी डी। अगर फर्स्ट मेंबर ए सिलेक्ट हो गया है, ए को आपने लिखा लेकिन ए को दोबारा आपने रिटर्न कर दिया पॉपुलेशन में। अब चांसेस क्या है कि ए के साथ ए भी आ सकता है, ए के साथ बी भी आ सकता है, ए के साथ सी और ए के साथ डी भी आ सकता है। ये 4 चांसेस हो गए जिनमें के फर्स्ट मेंबर ए सिलेक्ट हुआ है। अब ए स्टिल पॉपुलेशन के अंदर ही है। अब आप फर्स्ट स्लिप पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल इट इज बी। अब बी आपने नोट कर लिया, फर्स्ट मेंबर बी सिलेक्ट हो जाता है, तो बी के साथ सेकंड मेंबर कौन सा आ सकता है? इट मे बी ए, इट मे बी बी, इट मे बी सी और इट मे बी डी। सिमिलरली फर्स्ट मेंबर अगर सी आ रहा है तो सी के साथ भी चारों मेंबर्स जो है वो 1 बाय 1 आ सकते हैं सेकंड पोजीशन पर, एंड सेम केस फॉर डी। ओके, नेक्स्ट है हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है। ये पहले वाली एग्जांपल ही है जिसमें कि आप 4 फिश का डाटा था और ये हमने सैंपल्स ड्रॉ किए थे विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर हम ए बी सी डी की जगह उनकी ऑब्जर्वेशंस की ये वैल्यूज लिख दें तो ये हमारे सैंपल्स इस तरह से बनेंगे कि 18, 20, 18, 22, 18 के साथ 20, 22 और 24 आ जाएगा। फिर 18 निकल जाएगा, 20 के साथ 22 और 24 आ जाएगा और फिर 22 और 24 का सैंपल बन जाएगा। ये 6 पॉसिबल सैंपल्स बन जाएंगे विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स कंस्ट्रक्ट करनी है। इसके लिए क्या करना है, आपके पास जो सैंपल्स ड्रॉ हुए हैं उनके सैंपल मीन्स कैलकुलेट करने हैं। किस तरह से? ये 2 ऑब्जर्वेशंस का सैंपल है, इन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो 18 + 20 इज 38 डिवाइडेड बाय 2 19 मीन आ जाएगा। 18 + 22 40 डिवाइडेड बाय 2 20 मीन आ जाएगा। इस तरह 6 सैंपल्स के सबके मीन्स कैलकुलेट कर लें। अब आपने एक सेपरेट टेबल बनाना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स का, जस्ट लाइक आप बनाते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली बनता था ओरिजिनल डाटा वैल्यूज से। ये जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स है, यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज नहीं है बल्कि जो हमने मीन्स कैलकुलेट किए हैं ऑल पॉसिबल सैंपल्स से, हमने उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसीलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स कह रहे हैं। अब जो सैंपल मीन्स आपके पास यहाँ पर आए हैं ये कोई रिपीट भी हो रहे होंगे, आपने यहाँ पर उन्हें 1 टाइम लिख लेना है। जैसे 19, 20, 21 2 टाइम्स आ रहा है तो हम उसे 1 टाइम लिखेंगे, 22 और 23। नेक्स्ट कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का। आप काउंट करेंगे कि यह सैंपल मीन कितने टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे 21 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। अगर आप फ्रीक्वेंसी कॉलम को सम करें, it should be equal to your total number of samples. अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस तरह से कैलकुलेट करते थे, आप फ्रीक्वेंसी को टोटल से डिवाइड करते थे, उसी तरह से आप यहाँ पर करेंगे कि 1/6, 1/6, 2/6, 1/6, 1/6 और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम का सम जो है ये 1 के इक्वल होता है हमेशा। अब
आपको नेक्स्ट क्या करना है, फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। अब जो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट की है, हमें उसका मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है। ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स जो है, मीन्स कैलकुलेट किए हैं, ये एक्स बार हैं, ये उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं और ये उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहाँ हम पी की नोटेशन दे रहे हैं, पी से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स में आपके पास एक्स बार है और पी है। अब आपको इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स का मीन वेरिएंस है और स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक्स बार कॉलम को पी से मल्टीप्लाई करें, पी मल्टीप्लाई बाय एक्स बार, 19 इंटू 1/6 तो ये 19/6 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 1/6 इट इज 20/6 एंड सो ऑन। आप फ्रैक्शन में ऐसे ही लिख लें, इसको डिवाइड करके फिर ना लिखें, उस तरह फ्रैक्शनल वैल्यूज आ जाती हैं तो वो उसमें राउंडिंग एरर्स के इश्यूज होते हैं। आप सिंपली डिवाइजर सबका सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड करके यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट आपको कॉलम कैलकुलेट करना है, p मल्टीप्लाई बाय एक्स बार स्क्वायर, मतलब एक्स बार की वैल्यू को आप स्क्वायर करेंगे, 19 स्क्वायर इट इज 361, उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 361 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। इसी तरह इस कॉलम को का भी सम कर लें। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स का आपको मीन कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मीन ऑफ मीन्स, इसके लिए नोटेशन आएगी म्यू ऑफ एक्स बार। इसका फॉर्मूला होगा समेशन p इंटू एक्स बार। ये p मल्टीप्लाई बाय एक्स बार, इसको आपने जहाँ सम किया है ये 126/6, इट इज समेशन p इंटू एक्स बार। तो आप ये डिवाइड करके तो आंसर लिख दें, तो ये मीन ऑफ मीन्स आ रहा है, म्यू ऑफ एक्स बार। रिमेंबर एक्स बार होता है सैंपल मीन, म्यू होता है पॉपुलेशन मीन, और जब आप म्यू और उसके सबस्क्रिप्ट में एक्स बार लिख रहे हैं तो इसका मतलब है मीन ऑफ मीन्स, सैंपल मीन्स का अगेन मीन। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, समेशन p इंटू एक्स बार। फिर आपको वेरिएंस ऑफ मीन्स कैलकुलेट करना है, उसके लिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार, वेरिएंस ऑफ मीन्स, समेशन p इंटू एक्स बार स्क्वायर माइनस समेशन p इंटू एक्स बार होल स्क्वायर। ये जो एक्स बार को स्क्वायर करके p से मल्टीप्लाई किया था उसका सम ये समेशन p इंटू एक्स बार स्क्वायर है, और ये समेशन p इंटू एक्स बार ये 126/6 है, इसको स्क्वायर करना है तो ये डिवाइड करके 21 आता था, 21 का स्क्वायर और समेशन p इंटू एक्स बार स्क्वायर ये 2656 डिवाइडेड बाय 6 अगर आप करें तो ये 442.67 आता है। इसको सॉल्व करें तो ये 1.67 आ गया वेरिएंस ऑफ मीन्स। फिर आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ भी कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स या स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार क्या होगा, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ मीन्स, सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार का स्क्वायर रूट अगर आप ले लें तो ये आपके पास स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा। ये हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। हमारे पास पॉपुलेशन वैल्यूज क्या थी, 4 वैल्यूज की पॉपुलेशन थी जस्ट यहाँ पर 18, 20, 22 और 24। आपको इसका मीन चाहिए तो इनको ऐड करें और n से 4 से डिवाइड कर दें तो ये पॉपुलेशन मीन म्यू आ जाएगा। पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए आपके पास फॉर्मूला था x समेशन x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, तो यहाँ आपने x में से म्यू को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर लेना है, जस्ट लाइक आप सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करते थे। यहाँ ये आपके पास पॉपुलेशन वैल्यूज है तो इनमें से पॉपुलेशन मीन को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर डेविएशंस लेनी है आपने, उसको n से डिवाइड करें सम को तो ये आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस आ जाएगा। वेरीफाई दी प्रॉपर्टीज ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स। अब ये प्रॉपर्टीज क्या एग्जिस्ट करती हैं, म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल टू म्यू होता है हमेशा, मीन ऑफ मीन्स इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। ये आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स का अगर आप मीन कैलकुलेट करें
इट शुड बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। तो वो अगर आप देखें तो पीछे हमारे पास इन दोनों का आंसर 21 ही आ रहा था। सेकेंड प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट करती है वो क्या है कि सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू n माइनस n ओवर n माइनस 1 इंटू सिग्मा स्क्वायर ओवर n। रिमेंबर सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस है, कैपिटल N पॉपुलेशन साइज, स्मॉल n सैंपल साइज। अगर आप पॉपुलेशन वेरिएंस को इस फॉर्मूला में पुट करें तो और इधर आप यहाँ पे ये सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार जो है ये वेरिएंस ऑफ मीन्स है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स का ये हमारे पास वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स बार जो है ये 1.67 आया इस क्वेश्चन में। और अगर आप पॉपुलेशन वेरिएंस देखें तो ये 5 है। अगर 5 को आप n माइनस n पॉपुलेशन साइज 4 सैंपल साइज 2 इसको फॉर्मूला में पुटिंग करें, इनको सॉल्व करें तो ये दोनों क्वांटिटीज जो हैं ये इक्वल आएंगी। यहाँ ये जो n माइनस n ओवर n माइनस 1 है, दिस इज कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर।